مسیح یسوع کے عظیم جلالی ببرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ مسیح میں عزیزو، آج اس مضمون پر میں آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے والا ہوں۔ جس ٹاپک پر میں خدا کے کلام کی خدمت کرنے والا ہوں وہ ہے بڑی خوشی کی بشارت۔ لوکا طبیب کی انجیل مقدس دوسرے باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ہی فرشتہ جو ہے وہ یہ گڈ نیوز دے کر جاتا ہے تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ لوکا دوسرے باب کی 23ویں آیت میں فرشتوں کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو۔ ایک گروہ جو ہے فرشتوں کی، وہ اس کے بارے میں لکھا ہے وہ کیرل اور خدا کی پرستش کرتی ہوئی آسمان پر ظاہر ہوئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں یہ خوشخبری کا پیغام دیا گیا اور اس ڈے کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ اور آج بھی پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا ایونٹ ہے تو کرسمس کا ایونٹ ہے، مسیح یسوع کے پیدا ہونے کا ایونٹ ہے۔ اس ایونٹ کو اتنا بڑا کیوں لوگ اتنے جوش اور جذبے، محبت اور عقیدت سے مناتے ہیں؟ بعض لوگوں کا یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اس ایونٹ کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ آج اسی کے تعلق سے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ جو کرسمس ہے، مسیح یسوع کی پیدائش کا دن، اسے اتنی اہمیت، اتنی عقیدت مندی اور اتنی محبت، اتنے جنون، اتنے جوش کے ساتھ کیوں منایا جاتا ہے؟ بائبل مقدس میں سے ہی دیکھیں گے۔ اس سے بیشتر کہ ہم مسیح یسوع کی پیدائش پر، اس کے پیدا ہونے پر بات کریں، ہم عہد عتیق میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا، بائبل بتاتی ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو یہ پیدائش دوسرے باب کی 7ویں آیت ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو انسان کو خلق کیا وہ زمین کی مٹی سے کیا، اور آدم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے آدم کو زمین کی مٹی سے بنایا۔ یہ پہلا آدم، پہلا انسان جو زمین پر خدا تعالیٰ نے خلق کیا، جسے بنایا، جسے پیدا کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش 2 باب اور اس کی 22ویں آیت، اور خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی، ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے ایک ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ یہ دوسری کریٹیشن ہے، یہ دوسرا پہلا خدا نے آدم کو بائبل بتاتی کہ خدا نے زمین کی مٹی سے بنایا، ہوا کو خدا نے آدم کے گوشت اور ہڈی سے بنایا۔ 2 طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش ہوئی ہے، 2 طرح سے انسان اس کائنات میں، اس دنیا میں آیا، اور یہ جو طریقہ ہے یہ خدا کا طریقہ ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں پیدائش 4 باب کی 1 آیت میں لکھا ہے، اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا،
तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। मसीह में अज़ीज़ों, ये तीसरा तरीका है जो बाइबल हमें बताती है कि इंसान डिफरेंस कैटेगरी के ज़रिया से, डिफरेंस तरीके के ज़रिया से ज़मीन पर आया। पहला मट्टी से, दूसरा हड्डी और गोश्त से, और तीसरा जो है वो मियाँ बीवी के मिलाप से, जिस्मानी ताल्लुक से। अब हम देखेंगे कि जो चौथा तरीका है ये जिसके वसीला से मसीह यीशु दुनिया में आए, वो चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका जो है वो यूनिक है। चौथा तरीका जो है खुदा का ज़मीन पर आना निस्बत इंसान के, चूँकि खुदा खुद जो है वो ज़मीन पर आया। तो ये कह देना कि जी खुदा एक मौजज़ाना तौर पर ज़मीन पर आया, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके बारे में बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कई हज़ार साल पहले मसीह यीशु की पैदाइश की। यशायाह 7 बाब उसकी 14 आयत में, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा। मसीह में अज़ीज़ों, खुदा का मसीह की सूरत में तजस्सुम होना, जिस्म इख्तियार करना और इस कायनात में आना मेरी और आपकी निजात के लिए ये प्री प्लान था, ये एक मंसूबा था, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम हमेशा उसके साथ रहें। खुदा हमसे मोहब्बत करता है। बाइबल में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है और वो अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। और जब मसीह यीशु पैदा हुए तो बाइबल बताती है कि मजूसी गिफ्ट लेकर आए और उन्होंने उसे सिजदा किया। शमौन नामी एक बुजुर्ग, उसने मसीह यीशु को अपने हाथों में उठाया और बुलंद आवाज़ से कहा, आज मैंने तेरी निजात को देख लिया है, अब अपने बंदा को अपने कौल के मुआफ़िक और रुखसत कर। और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उस वक्त भी ज़मीन पर बैतलहम में जो बड़ी खुशी मनाई गई, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया पढ़ के कि ज़मीन पर जो है वो फरिश्तों ने, चरवाहों ने और बहुत सारे बाइबल मुक़द्दस में हमें लोग मिलते हैं, चरवाहे, फरिश्ते और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे खुशखबरी में कि खुदा जो है इंसानी सूरत में ज़मीन पर पैदा हुआ है, एक बादशाह पैदा हुआ है, और हम उसे जो है देखने चलें और उसे सिजदा करें। बाइबल मुक़द्दस में मैंने बताया कि इंसान 4 तरीक़ों से इस रूए ज़मीन पर आया। इसी में चीज़ों एक 5वां तरीका भी है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारों के लिए है, और उस तरीके के बगैर आप खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। उस तरीके के बगैर आप खुदा की अब्दियत में दाखिल नहीं हो सकते। उस तरीके के बगैर आप खुदा के वादों में शरीक नहीं हो सकते। और वो तरीका है मसीह में पैदा होना, जिसके बारे में 2 ग्रंथियों 5वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। और 2 ग्रंथियों 5वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मिलाप किया। और जो 5वीं पैदाइश जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, यूहन्ना की इंजील 5वें बाब में लिखा है, निकोदेमुस ने यीशु से कहा, ऐ उस्ताद मुझे बता कि मैं किस तरह खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता हूँ।
यीशु ने कहा जो जिस्म से पैदा होता है वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। ताज्जुब न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। मसीह में अज़ीज़ों, जब तक हम मसीह में पैदा नहीं होते हम नए सिरे से पैदा नहीं होते। आए मसीह की पैदाइश का दिन हम जब से पैदा हुए मसीह घरानों में हम मना रहे हैं। हम नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, सैरो तफरीह के लिए जाते हैं, इबादत के लिए भी जाते हैं। लेकिन क्या आज आप मसीह में पैदा हुए? मसीह में पैदा होना, ईमान में पैदा होना, मसीह में पैदा होना एक नई मखलूक बन जाना। मसीह में पैदा होने का मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगियों को जिस तरह से गुजारें उन्हें चेक करें। अगर हम गलत तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें तो फिर मसीह की मानद जिस तरह बाइबल में मसीह हमसे तवक्को करता है, जिस तरह बाइबल में मसीह हमसे उम्मीद करता है कि हम उसमें पैदा हों और उसकी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि गलतियों दूसरे बाब की 20वीं आयत में पौलुस कहता है कि अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। आए एक दूसरे से वादा करें कि मसीह तो 25 दिसंबर को पैदा हुआ और हम उसकी खुशी मनाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है जिस दिन एक गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। हम तो मसीह की खुशी हर 25 दिसंबर को मनाते हैं और मनाते रहेंगे जब तक हम इस ज़मीन पर, इस कायनात पर मुसाफिर और परदेसी हैं। और हम खुदा के बेटे यीशु मसीह की मोहब्बत का, उसके कफ़ारे का, उसकी खुशखबरी का ऐलान करते रहेंगे। लेकिन इससे भी ज़रूरी ये है कि हमें मसीह में नया मखलूक बनना है। आए आज से मसीह में पैदा हो, वादा करें कि हम अपनी ज़िंदगी को मसीह की तालीम के मुताबिक गुजारेंगे। जितने इस मैसेज को सुन रहे हैं अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और अपनी ज़िंदगियों में मसीह की पैदाइश को, मसीह के अंदर पैदा होने को महसूस करें। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और मेरा ईमान है कि आप इस मैसेज के वसीला से बरकत पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में एक नई पैदाइश के तजर्बे को हासिल करेंगे जो एक ईमानदार के लिए ज़रूरी है। सो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।